गौरव। सुप्रभात। सुप्रभात। मैं गौरव तिवारी कक्षा 5वीं A से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सबके समक्ष कविता पाठ करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है स्वामी विवेकानंद जी, जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान। शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गूंजा जयकारा था, जिससे दुनिया प्रभावित थी। जिसके चेहरे पर शांति और जिसके हृदय में आनंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम स्वामी विवेकानंद था। वो भारत का एक सन्यासी नाम स्वामी विवेकानंद था। धन्यवाद। आयुषी सिंह। सुप्रभात। मेरा नाम आरुषि सिंह है। मैं कक्षा 5वीं A से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पोयम बोलने जा रही हूँ। नव भारत का निर्माण, नव आत्मज्ञान की उत्पत्ति, सख्त हृदय ईश्वर की शक्ति, कर अग्रह नवरत्न महाकों को एक उत्कृष्ट राष्ट्र का बड़ी उठाया। हाँ, वही महात्मा इस जग का प्यारा स्वामी विवेकानंद कहलाया। धन्यवाद। कौशिक। सुप्रभात। मैं किंशु कक्षा 5वीं A से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष कविता पाठ करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद ने दुनिया को संस्कृति का पाठ पढ़ाया, सभी को कहकर भाई बहन भारत का मान बढ़ाया। देश की शक्ति विवेकानंद, देश की शक्ति विवेकानंद। युवा वर्ग को कहते हैं रुको नहीं लक्ष्य प्राप्ति तक, रुको नहीं लक्ष्य प्राप्ति तक। यह जोश सभी में भरते हैं। आज के युवा भटके पद से उनका कुछ उद्धार करो। विवेकानंद जी, भारत में फिर से तुम अवतार करो। धन्यवाद। नेवी चिल्ड्रन स्कूल। नेवी चिल्ड्रन स्कूल। अभिष्का शर्मा। Good morning to one and all present here. I am Avishka Sharma from class 5th A. Today I am going to recite a poem, The Living God by Swami Vivekananda. The living God, He who is in you and outside you, who walks through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye, Him worship, break all other idols. He who is at once the high and low, the sinner and the saint, both God and worm, Him worship, visible,
knowable, real, omnipresent, and break all other idols, in whom is neither past life, nor future birth, nor death, in whom we always have been and always shall be one. Him worship, break all other idols. Ye fools who neglect the living God and his infinite reflection with which the world is full. While you run after imaginary shadows which leads alone to fights and calls, him worship, the only visible, and break all other idols. Thank you. Pranav. Hello. Good morning, respected judges, teachers, and all my dear friends. My name is Pranav Kodnikar. I am a student of Navy Children's School, Port Blair, and I study in class 5th C. Today, I am going to recite a beautiful poem written by Swami Vivekananda to his disciple, Sister Nivedita. The name of the poem is A Benediction. This poem showcases an emotional connection between a guru and his disciple. Through this poem, Swami Vivekananda expresses feelings of his hopes, aspirations, and good wishes for his disciple. A Benediction by Swami Vivekananda. The mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwell on Aryan altars flaming free. All these be yours and many more, no ancient soul could dream before. Be thou to India's future son, the mistress, servant, friend in one. Thank you. Suhana Dubey. Good morning everyone. I am Suhana Dubey from class 5th A. Today I am going to recite a poem. The topic for my poem is the living God. He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye, him worship, break all other idols. He who is at once the high and the low, the sinner and the saint, both God and warm. Him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other idols. In whom is neither past life nor future, birth nor death, in whom we always have been and always shall be one. Him worship, break all other idols. Ye fools, you run after the imaginary shadows Ye fools, you neglect the living God and his infinite reflections with which the world is full, while you run after the imaginary shadows that lead alone to fights and quarrels. Him worship, the only visible, break all other idols. Thank you. Nirmala Senior School. Nirmala Senior Secondary. Only Group A, only Group A. Moeedu Malik. Good morning, respected judges, teachers, and all my dear friends. Today, I am Mayuri Malik of class 6th A from Nirmala Senior Secondary School is going to recite a poem composed by Swami Vivekananda. The title of the poem is Requiescat Cat in Peace. Speed forth, O soul, upon thy star-strewn path. Speed, blissful one, where thought is ever free, where time and space no longer mist the view. Eternal peace and blessings be with them. Thy service true, complete thy sacrifice. Thy home, the heart of love, transcendence find. Remembrance sweet that kills all space and time. Like altar roses, fill thy place behind.
Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found, and one with that which comes as death and life. Thou helpful one, unselfish ever on earth, ahead, still help with love this world of strife. Thank you. 8 lakh. 8 lakh. Wexla. A very warm good morning to one and all present here, respected teachers, judges and all my dear friends. I, Idal Bakla of class 4B from Nirmala Senior Secondary School is going to recite one of the poems of Swami Vivekananda. The title of the poem is The Living God. He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all yeah, him worship and break all other idols. He who is at once the high and low, the sinner and the saint, both God and warm. Him worship visible, knowable, real, omnipresent. Break all other idols, in whom is neither past life, nor future birth, nor death, in whom we always have been and always shall be one. Him worship and break all other idols. Ye fool, who neglect the living God and his infinite reflection with which the world is full, while ye run after imaginary shadow that lead alone to fight and quarrel. We worship the only visible, break all other idols. Thank you. Shuravi. A very warm good morning to one and all present here, respected teachers, judges and all my dear friends. I am Surabhi Sunil of class 5th B from Nirmala Senior Secondary School. Today I am going to recite one of the poem composed by Swami Vivekananda. The title of the poem is A Benediction. The mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwell on Aryan altars, flaming, free, all these be yours, and many more no ancient soul could dream before. Be thou to India's future son, the mistress, servant, friend in one. Thank you. Ummat Public School. Afra Sameer. नमस्कार, मेरा नाम अफीफा समीर है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उम्मत पब्लिक स्कूल है। मेरे कविता का शीर्षक स्वामी विवेकानंदा है। सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सा व्योम में या विश्व नजर आता है। मनो आकान अस्फुट भासमान विश्व वहाँ आहनकार, साथ ही में तीरता डूब जाता है। धीरे धीरे छाए दल लय में समाया, जब धारा निज अहंकर मंद गति बहाता है। बनवा धारा हुई शून्य में मिला है शून्य, अवान्मत सगोचरम वह जाने जो ज्ञाता है। ईजा मोहसिन खान। Good morning everyone. My name is Aiza Mohsin Khan. I am studying class 5th A. My school's name is Ummat Public School. A benediction written by Swami Vivekananda to her sister Nivedita.
the mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwells on Aryan altar, flaming free. All this be yours and many more, no ancient soul could dream before. Be thou to India's future son, mistress, servant, friends in one. Thank you. Mohammed Swabi. Good morning, my name is E. Muhammad Swabi. I am studying in Ummat Public School, class 6th. I am going to recite a poem written by Swamiji. The mother's heart, the hero's will, the softest flower, sweetest feel. The mother's heart, the hero's will, the softest flower, sweetest feel, the charm and force that ever sway, the altar fire's flaming place, the charm and force that ever sway, the altar fire's flaming place. May mother grant to thee, may mother grant to thee the son that leads, in love obeys, far-reaching dreams in patient ways, eternal faith in self in all, the side dive in great in small. All these and more than I could see, today may mother grant to thee. All these and more than I could see, today may mother grant to thee. May mother grant to thee. May mother grant to thee. Ever with your loves and blessings, by Swami Vivekananda. Thank you. Fiza Saukar. Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is Faiza Shakur from Ummat Public School. I study in class 5th A. The title of my poem is Benedication. The mother's heart, the hero's will. The mother's heart, the hero's will. The sweetness of the southern breeze. The sacred charm and strength that dwell on Aryan altar, flaming free. On Aryan altar, flaming free. All this be yours and many more. No Asian soul could dream before. Be thou to India's future son. Be thou to India's future son, mistress, servant, friend in one. Thank you. Mohammed Zaid. नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद जैद है और मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं उम्मत पब्लिक से आया हूँ और मैं आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ लाइन बोलने जा रहा हूँ। सूर्य भी नहीं है ज्योति, सुंदर शशांक नहीं, छाया सा व्योम में यह विश्व नजर आता है। मनो आकाश अस्फुट भस्मान विश्व कहाँ, अहंकार स्रोत ही में फिरता डूब जाता है। धीरे धीरे छायादय लय में समाया जब, हर नीच अहंकार मन गति बहाता है। बंद वह धारा हुई शून्य में मिला है शून्य, अवांग मत सगो जरम वह जाने जो शाता है। धन्यवाद। इन असफा अफसर। सुप्रभात, मेरा नाम एन अफसा है और मैं क्लास 6 की छात्र हूँ। आज मैं स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए एक कविता सुनाने वाली हूँ।
मंगल शिव माता के हृदय और वीर के संकल्प शील में मलयाली की मध्य वे पार्वती आकर्षित शक्ति पूर्ण ये सब हो और तेरे ही हो जिस तेज और कभी सपने में ना सोचा हो तू ही हो जा भारत की भावी संतान स्वामी विवेका मित्र एकार। धन्यवाद। जहाना जहाना तुम बैठो बैठो Good morning everyone. Myself Zahana Kizar from class 8B Ummad Public School. A benediction Swami Vivekananda. The mother's heart, the hero's will, the sacrifice. Good morning everyone. Myself Zahana Kizar from class 8B Ummad Public School. A benediction Swami Vivekananda. The mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwell on Aryan's altars, flaming free. All these be yours and many more. No ancient soul could dream before. Be thou to India's future son, the mistress, servant, friend in one. Thank you. Have a nice day. Zohana. Good morning. My name is Zuana. I study in class 5th. The poem named is A Benediction. The mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwell on Aryan altars, flaming free, all these be yours, and many more, no ancient soul could dream before. Be thou to India's future son, the mistress, servant, friend in one. Thank you. Next school, Vivekananda Kendriya Vidyalaya. Only group A, only group A, only group A up to class 7. टीचर कहाँ है इसका? आकाश नमस्कार, मेरा नाम है अक्षयांश एस। आज मैं पेश करने जा रहा हूँ स्वामी जी की एक कविता जिसका नाम है जागृत देवता। वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो तुम सबके घट में व्यक्त है, उसी की आराधना करो और अन्य प्रतिमा को तोड़ दो। जो एक साथ ही ऊंचे पर और नीचे भी है, पापी और महात्मा, ईश्वर और निकृष्ट कीट एक साथ ही हैं, उसी की पूजन करो जो दृश्यमान है, गेयी है, सत्य है, सर्वव्यापी है। अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो अतीत जीवन से मुक्त, भविष्य के जन्म मरण से परे हैं, जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे और जिसमें हमारी स्थिति है। अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। ओ विमूढ़, जागृत देवता की उपेक्षा मत करो।
उनके प्रतिबिंबों से ही विश्व पूर्ण है। काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो जो तुम्हें विग्रहों में हाथती है। उस परम प्रभु की उपासना करो जिसे सामने देख रहे हो। अन्य सभी प्रतिमाएं तोड़ दो। धन्यवाद। आरिध्य कुमारी। यहाँ पर उपस्थित सभी गणों को मेरा नमस्कार। मैं आराध्या कुमारी, कक्षा 5वीं की छात्रा। आज मैं आप सबके सामने स्वामी जी की एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है जागृत देवता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो तुम सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो तुम सबके घट पे व्यक्त है, उसी की आराधना करो। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो। एक साथ ही ऊंचे पर भी है और नीचे पर भी है। पापी, महात्मा, ईश्वर, निकृष्ट कीट एक साथ ही है। उसी की पूजन करो जो दृश्यमान है, ज्ञेय है, सत्य है, सर्वव्यापी है। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो जो अतीत जीवन से मुक्त, भविष्य के जन्म से मरणों से परे हैं, जिसमें हमारी स्थिति है और जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे। उसी की आराधना करो। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो। ओ विमूढ़, जागृत देवता की उपेक्षा मत करो। उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही विश्व पूर्ण है। काल्पनिक छाओं के पीछे मत भागो जो तुम्हें विग्रहों में डालती है। उस परम प्रभु की उपासना करो जिसे तुम सामने देख रहे हो। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो। धन्यवाद। One announcement: you are requested to keep quiet while reception is going on, and also keep your mobile in silent mode. Please keep your mobile in silent mode. It will be making a lot of disturb to us, especially to us judges. Next, Ananna M. Pillai. Namaskar, my name is Ananya Pillai. I am studying in class 6th. Today I am going to recite the poem of the benediction written by Swami Vivekananda. The mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southerner's breeze, the sad charm and sunny dwell, on Aryan's ethers, farming free, all these be yours and many more. No ancient soul could be dreamed before. Be thou to India's future son, the mystery servant, friend in one. Thank you. Adiva Arif. Respected judges, teachers, parents, and all my dear brothers and sisters, myself Yadiba Arif of class 6A, Vivekananda Kendra Vidyalaya, Port Blair. I am going to present a poem written by Swami Vivekananda, the living God. He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye. He who is at once the high and low, the sinner and the saint, both God and wrong. Him worship, visible, knowable, real, optimistic, break all other idols. In whom is neither past life nor future birth nor death, in whom we always have been and always shall be one.
him worship, break all other idols, ye fools who neglect the living God and his infinite reflection with which the world is full, while ye run after imaginary shadows that lead alone to fights and quarrels, him worship the only visible, break all other idols. Thank you. Adisri. नमस्कार, मेरा नाम मिया सादिशी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ। वो कविता का नाम है जागृत देवता। वो कविता को स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। वहाँ जो तुम्हें है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करते हैं, जो सबके पैरों में समाया हो जाता है, जो सबके गट में भी व्यक्त है, उसी की पूजन, उसी की आराधना करो, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो एक साथ ही ऊंचे पर और नीचे भी, पापी और महात्मा, ईश्वर और निकृष्ट कीड़े एक साथ ही है, उसी की पूजन करो। जो हृदयमान है, ज्ञानी है, सत्य है, सर्वव्यापी है, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो अतीत जीवन से मुक्त, भविष्य में जन्म मरणों से परे है और जिसमें हमारी स्थिति है और जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे, और उसी की उपासना करो, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो अतीत जीवन से मुक्त, ओ विमूढ़ जागृत देवता की उपेक्षा मत करो। उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही विष्णु पूर्ण है। काल्पनिक छाया के पीछे मत भागो, जो तुम्हें विग्रह में डालता है। उस परम प्रभु की उपासना करो जिसे तुम सामने देख रहे हो, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। धन्यवाद। दिव्या। Namaskar, myself Divya Darshini, studying in class 6C. Today I am going to recite a poem by Swami Vivekananda, the living God. He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye, him worship and break all other idols. He who is at once the high and low, the sinner and the saint, both God and worm, him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other idols. In whom neither past life nor future birth, in whom we have always been and always shall be one, him worship, break all other idols. Ye fools who neglect the living God and his infinite reflection with which the world is full, while ye runs after imaginary shadows that leads alone to fight and quarrel, him worship, the only visible, break all other idols. Thank you. Next school, Government Model Senior Secondary School, Group B. There is a break for 5 minutes. Cloud is hidden a bit, if the welkin shows but gloom, still hold on yet a while, brave heart, the victory is sure to come. No winter was, but summer came behind, each hollow crest the wave, they push each other in light and shade, be steady then and brave. The duties of life are sore indeed, and its pleasure fleeting vain, the goal so shadowy seems and dim, yet plod on through the dark, brave heart, with all thy might and main. Not a work will be lost, no struggle vain, though hopes be blighted, powers scorn of thy law ends, shall come the highest to all, then hold on yet a while, brave soul, no good ever undone.
Though the good and the wise in life are few, yet theirs are the reins to lead. The masses know but late the word, heed none and gently guide. With thee are those who see afar, with thee is the Lord of might. All blessings pour on thee, great soul, to thee may all come right. Thank you. Next, Amrita Singh Jadhav. Amrita Singh Jadhav, class class 7. नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह यादव है। मैं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो स्वामी जी की जीवन कथा है। स्वामी जी बड़े महान थे, किए उन्होंने बड़े बड़े विख्यात काम थे। जन्मे थे साधारण परिवार में, कहलाए नरेंद्र पहली बार में। धार्मिक आधार्मिक वातावरण में जीवन उनका पनपा था। बचपन से नरेंद्र के मन में एक ही स्वप्न जन्मा था, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो या बोध सबके मन में भरना था। स्वप्न हकीकत करना है या नरेंद्र ने मन में ठाना था। ऐशो आराम का जीवन छोड़, चोला सन्यासी का डालकर परिवार को मात्र 25 में छोड़ नई राह पर कदम बढ़ाया था। रामकिशन जी के शिष्य बन ब्रह्म समाज का ज्ञान विकसित किया और सन्यासी बन चले शिकागो। प्रतिनिधित्व भारत का संपूर्ण विश्व में धर्म स्थापना कर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया। वापस भारत आकर स्वामी जी को शिष्य और गुरु का कर्म निभाया था। कर स्थापना रामकिशन मठ जी की शिष्य होने का धर्म निभाया था। स्वामी जी के विचारों को विश्व में लोगों ने अपनाया था। युवा वर्ग ने तो प्रभावित होकर स्वामी जी को अपना गुरु बनाया था। ध्यान मग्न हो गए स्वामी जी, माँ समृद्धि लेने का चयन किया। स्वामी जी ने तो अपना जीवन इस माँ समृद्धि में ही त्याग दिया। स्वामी जी का जन्म दिवस हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को हम सब मिलकर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं और स्वामी जी का गौरव बढ़ाते हैं। धन्यवाद। बबीता महापत। नमस्कार, मैं 28। नमस्कार, मैं बबीता महापात्रा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है समाधि। सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सा व्योम में या विश्व नजर आता है। मनो आकाश अस्फुट भासमान विश्व वहा, अहंकार स्रोत ही में तीरता डूब जाता है। धीरे धीरे छायागर लय में समाया जब, धारा नीच अहंकार मंदगति भाता है। बंद व धारा हुई, शून्य में मिला है शून्य, अवांड मत्स्य गोचरम व जाने जो ज्ञाता है। धन्यवाद। अनुराधा। नमस्कार, मैं आराधना कुमारी राय आप सभी के सामने राजकीय माध्यमिक वरिष्ठ विद्यालय की ओर से कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के सामने स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जागृत देवता। वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, वह जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, वह जो तुम सबके पैरों में समाया हुआ चलता है। वह जो तुम सबके हाथों में बैठकर काम करता है, वह जो तुम सबके पैरों में समाया हुआ चलता है।
गवर्नमेंट गर्ल्स धन्यवाद। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। But they are absent as per teacher. Government Girls Secondary School, are you here? Okay. Senior Secondary School. Government Senior Secondary School. Diksha Rao. Is Diksha Rao is here? Naj Hussain, Shamiksha Deep, Kiran Shahu, Priyadarshini, नमस्ते, मेरा नाम किरण शाहू है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 9 में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक कविता कहूँगी। जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिन्होंने भारत का बढ़ाया था मान, शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा संसार रह गया था दंग, वह भारत का एक सन्यासी नाम स्वामी विवेकानंद। मेरे अमेरिकन भाई और बहनों, कहकर जब उन्होंने पुकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरियों में भारत का गूंजा जयकारा था। जिससे दुनिया प्रभावित थी, वह भारत का एक सन्यासी नाम स्वामी विवेकानंद था। सोचित वैचित पीढ़ी के लिए जिसके मन में करुणा थी, जिसके चेहरे पे शांति और हृदय में आनंद था, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, वह भारत का एक सन्यासी नाम स्वामी विवेकानंद था। धन्यवाद। प्रियदर्शन। आप सबको नमस्ते, मेरा नाम पी प्रियदर्शनी है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 9 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कविता सुनाने वाली हूँ। स्वामी जी थे बड़े महान, किए उन्होंने बड़े बड़े विख्यात काम। जन्मे थे साधारण परिवार में, कहलाए नरेंद्र पहली बार में। धार्मिक अधार्मिक वातावरण में जीवन उनका पनपा था। बचपन से नरेंद्र नाथ के दिल पर एक ही स्वप्न जन्मा था, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो यह बोझ सबके मन में भरना था। स्वप्न हकीकत करना है ये नरेंद्र के मन में ठाना था। ऐशो आराम का जीवन छोला सन्यासी का टाला था, नई राह पर कदम बढ़ाया था। रामकृष्ण जी का शिष्य बन ब्रह्म समाज का ज्ञान प्राप्त किया और सन्यासी बन चले शिकों का और भारत का गौरव बढ़ाया था। स्वामी जी के विचारों को विश्व में लोगों ने अपनाया, युवक वर्ग ने तो प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। वापस भारत लौटकर स्वामी जी ने अपना गुरु शिष्य होने का कर्म निभाया। खर स्थापना रामकृष्ण शठ का शिष्य होने का कर्म निभाया। ध्यानमग्न हो गए स्वामी जी, महासमाधि लेने का चयन किया और स्वामी जी ने अपना जीवन इस महासमाधि में ही त्याग दिया। स्वामी जी का जन्म दिवस हम धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम सब मिलकर राष्ट्रीय युवक दिवस भी बनाते हैं और स्वामी जी का गौरव बढ़ाते हैं। धन्यवाद। सुजय दास। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुजय दास है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल 9 का 10वीं का छात्रा हूँ। आज मैं स्वामी जी के लिए एक छोटी सी कविता पेश करने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद विवेक पुजारी थे। अन्याय के खिलाफ वह तीक्ष्ण कटारी थे। वेद मातृभाषा को जिन्होंने दुनिया में फैलाया था, हिंदुस्तान का परचम जग में हिम्मत से लहराया था।
ऊंच नीच भेदभाव को जिसने मिटाकर उद्यम करना सिखलाया, नारी शिक्षा पर बल देकर जिसने सबल पद दिलवाया, जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ही तुम विजय पाओगे। जब तक जीवन में हो सीखो कुछ, हमेशा सर्वश्रेष्ठ तुम बन जाओगे। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, वीरेश शाही। Good morning to one and all present here. I am V. Vishresai of class 9, studying in Kendriya Vidyalaya number 1, Port Blair. Respected judges, teachers and all my dear friends, I am going to recite the poem written by Swami Vivekananda ji, The Living God. He is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye. Him worship and break all other idols. He is at once the high and low, the sinner and the saint, both God and worm. Him worship, visual, knowable, real, omnipresent, break all other idols. In whom is neither past life nor future birth nor death, in whom you always have been and always shall be one. Him worship, break all other idols. Ye fools, who neglects the living God and ye fools, who neglects the living God and his reflection which the world is full. While you run after the imaginary shadows that lead to fights and quarrels. Him worship, the visual one, break all other idols. Thank you. Khalsa Public School. Ansh Tiwari. Good morning everyone. My name is Ansh Tiwari. I am studying in class 8 from Khalsa Public Senior Secondary School. Today I am going to recite a poem, a benediction. The mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwell on Aryan altars flaming free. All this be yours and many more. No ancient soul could dream before. Be thou to India's future sons, this mistress, servant, friends in one, by Swami Vivekananda. Thank you. Anushari Mandal. Anusri Mandal. प्रेम की परिभाषित कोई कर नहीं सकता, प्रेम की परिभाषित कोई कर नहीं सकता, जो स्वयं में संपूर्ण उसे खंडित नहीं कर सकता, जो स्वयं में संपूर्ण उसे खंडित नहीं कर सकता। आत्मा से प्रेम की बातें कही जाती है, आत्मा से प्रेम की बातें कही जाती है, मगर आत्मा से परमात्मा सा प्रेम कोई कर नहीं सकता। नमस्कार, मैं अनुश्री मंडल कक्षा 10वीं की छात्रा खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जागृत देवता। वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो सबके घट में व्यक्त है, जो सबके घट में व्यक्त है, उसी की आराधना करो। अन्य सब प्रतिमा को छोड़ो, अन्य
सभी प्रतिमा को छोड़ दो, जो एक साथ ही ऊंचे पर और नीचे भी है, जो एक साथ ही ऊंचे पर और नीचे भी है, पापी और महात्मा, पापी और महात्मा, ईश्वर और निष्कर्ष एक साथ ही है। उसी की पूजन करो जो दृश्यमान है, यह है, सत्य है, सर्वव्यापी है। अन्य सभी प्रतिमा को छोड़ दो, अन्य सभी प्रतिमा को छोड़ दो। जो अतीत जीवन से मुक्त, जो अतीत जीवन से मुक्त भविष्य के जन्म मरणों से परे है, भविष्य के जन्म मरणों से परे है, और जिसमें हमारी स्थिति है और जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे, उसी की आराधना करो। अन्य सभी प्रतिमा को छोड़ दो, अन्य सभी प्रतिमा को छोड़ दो। ओ विमूढ़, जागृत देवता की उपेक्षा मत करो। उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही पूरा विश्व पूर्ण है, उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही पूरा विश्व पूर्ण है। काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो, काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो जो तुम्हें विग्रहों में डालती है, जो तुम्हें विग्रहों में डालती है। तुम उस परम प्रभु की उपासना करो, तुम उस परम प्रभु की उपासना करो जिसे तुम देख रहे हो। अन्य सभी प्रतिमा को छोड़ दो, अन्य सभी प्रतिमा को छोड़ दो। धन्यवाद। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल। यदि सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे, खुद को सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। इसी कथन के साथ नमस्कार आदरणीय निर्णायक गण, शिक्षक गण एवं यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं रोशन राठौर कक्षा 10वीं का छात्र खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गाता हूँ मैं गीत तुम्हें ही सुनाने को। और इस कविता के शीर्षक हैं, इस कविता के रचनाकार हैं श्री स्वामी विवेकानंद जी। छोड़ो विद्या जब तब काबल, छोड़ो विद्या जब तब काबल। स्वार्थ विहीन प्रेम आधार, स्वार्थ विहीन प्रेम आधार। एक हृदय का देखो शिक्षा देता है पतंग पर प्यार, देखो शिक्षा देता है पतंग पर प्यार। अग्नि शिखा को आलिंगन कर रूप मुग्ध वह कोट अधम, अग्नि शिखा को आलिंगन कर रूप मुग्ध वह कोट अधम। अंध और तुम मत प्रेम के हृदय तुम्हारा उज्ज्वलतम, हृदय तुम्हारा उज्ज्वलतम। प्रेम वत्स सब स्वार्थ मलिनता अनल कुंड में भस्मीकृत, अनल कुंड में भस्मीकृत कर दो। सोचो भिक्षुक हृदय सदा का ही है सुख वर्जित, सोचो भिक्षुक हृदय सदा का ही है सुख वर्जित। और कृपा के पात्र हुए भी तो क्या फल, तुम बारंबार मोचो दो न फेर कर लो। यदि दो अंतर में कुछ भी प्यार, यदि दो अंतर में कुछ भी प्यार। अंत स्थल के तुम अधिकारो सिंधु प्रेम का भला आपार, सिंधु प्रेम का भला आपार। अंतर में दो जो चाहे हो सिंधु बिंदु विद्दु सिद्धू उसका निहासार, हो विद्दु सिद्धू उसका निहासार। व्यस्त और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार, व्यस्त और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार, सब भूतों का है आधार। एक प्रेम है प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मन वार, प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मन वार। बहु रूप से खड़े तुम्हारे आगे और कहाँ है ईश, बहु रूप से खड़े तुम्हारे आगे और कहाँ है ईश। व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश, व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। आशा है आप सभी को यह कविता पसंद आई होगी। जय हिंद। नेक्स्ट स्कूल निर्मला सेकेंडरी स्कूल। सुनीता सरकार। A
very warm good morning to one and all present here. Respected judges, teachers and all my dear friends. I, Sunita Sarkar of class 10th from Nirmala Senior Secondary School, going to recite one of the poems composed by Swami Vivekananda. The title of the poem is The Living God. He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye, him worship and break all other ideals. He who is at once high and low, the sinner and saint, both God and womb. Him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other ideals, in whom neither the past life nor future death nor death, in whom we have been and we shall be one. Him worship and break all other ideal. He fool who neglects the living God and his infinite reflection with which the whole world is full. While ye run after the imaginary shadows that lead you alone, the fights and quarrels, him worship the only visible and break all other ideals. Thank you. जी लोहिता लाहिड़ी। नमस्कार, मैं जी लोहिता लहरी कक्षा 9वीं निर्मला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जागृत देवता द्वारा स्वामी विवेकानंद। वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो तुम सबके घट में व्याप्त है, उसी की आराधना करो। अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो, जो एक साथ ही ऊंचे पर और नीचे भी है। पापी और महात्मा, ईश्वर और निकृष्ट कीट एक साथ ही है, उसी की पूजन करो। जो दृश्यमान है, ज्ञेय है, सत्य है, सर्वव्यापी है। अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो, जो अतीत जीवन से मुक्त, भविष्य के जन्म मरणों से परे है, और जिसमें हमारी स्थिति है और जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे, उसी की आराधना करो। अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। ओ विमूढ़, जागृत देवता की उपेक्षा मत करो, उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही विश्व पूर्ण है। काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो, जो तुम्हें विग्रहों में डालती है। उस परम प्रभु की उपासना करो, जिसे सामने देख रहे हो। अन्य सभी प्रतिमाएं तोड़ दो। धन्यवाद। A very warm good morning to one and all present here, respected judges, teachers and all my dear friends. Today I, Jayati Ekka from Nirmala Senior Secondary School, class 8B, is going to recite one of the poems composed by Swami Vivekananda. The title of the poem is The Living God. He who is in you and outside you, who walks through all hands, who walks on all feet, whose body are all way, him worship and break all other idols. He who is at once the high and low, the sinner and the saint, both God and worm, him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other idols, in whom is neither past life nor future birth nor death, in whom we always have been and always shall be one. Him worship and break all other idols. Ye fools who neglect the living God and his infinite reflection with which the world is full, while ye run after imaginary shadows that lead alone to fights and quarrels. Him worship, the only visible, break all other idols. Thank you.
Hello. Awake and rise and don't stop until you reach your goal. A warm good morning to respected Swamiji, judges, teachers and all my dear brothers and sisters. Myself S. Narmadhashri, student of class 10, standing before you to recite the poem which was written by Swami Vivekananda. The title of the poem is Requiescat in Peace. Speak forth, O soul, upon thy star, strewn path, speed, blissful one, where thoughts are ever free, where time and space no longer miss the view. Eternal peace and blessings be with her. Thy service true, complete, thy sacrifice, thy home, the heart of love, transcendent fine, remembrance sweet, that is all space in time, like altered roses, fill thy place behind, thy bonds are broke, thy quest in bliss is found, and one with that which comes as death and life, though helpful one, unselfish on earth, ahead, still help with love this world of strife. At last, I would like to conclude my poem by telling a thought of Swami Vivekananda, that is, take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Thank you. Hello. Hello. There is no God. There is no God higher than you. There is no God separate from you. A very warm good morning to one and all present here. My name is K. Pallavi and I am from Ajuli Public Vidyalaya, studying in class 9. Today I am going to recite a poem of Swami Vivekananda ji. The title of the poem is The Living God. He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all ye, him worship and break all other idols. He who is at once the high and low, the sinner and the saint, both the God and worm. Him worship, break all other idols, in whom is neither the past life, nor future birth, nor death, in whom we always have been and always shall be one. Him worship, break all other idols. He fools who neglect the living God, his infinite reflection with which the world is full. While they run after imaginary shadows that let alone to fight and quarrel, him worship the only visible. Him worship the only visible. Break all other idols. Thank you, Jai Hind.
के श्रुति। हेलो हेलो। दिल में हिम्मत, मन में ताकत तेरे नाम से ही मिले। स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन। आगे बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, स्वामी जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं की श्रुति कक्षा 10वीं की आजरी पब्लिक विद्यालय से आज मैं आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कविता उसे शांति में विश्राम मिले इस कविता का पाठ करने जा रही हूँ। आगे बढ़ो हो आत्मन अपने नक्षत्र जड़ित पथ पर, है परम आनंद पूर्ण। बढ़ो जहाँ मुक्त विचार हैं, जहाँ काल और देश से दृष्टि धूमिल नहीं होती और जहाँ चिंतन, शांति और वरदान है तुम्हारे लिए, जहाँ तुम्हारी सेवा बलिदान को पूर्णत्व देगी, जहाँ श्रेयस प्यार से भरे हृदयों में तुम्हारा निवास होगा। मधुर स्मृतियाँ देश और काल की दुनिया खत्म कर देती हैं, बलिवेदी के गुलाबों के समान तुम्हारे पश्चात विश्व को आपूरित करेंगी। अब तुम बंधन मुक्त हो, तुम्हारी खोज परमानंद तक पहुंच चुकी है। अब तुम उसमें लीन हो जो मरण और जीवन बनकर आता है। हे परोपकारक, हे निस्वार्थ प्राण, आगे बढ़ो इस संप्ररत विश्व में। अभी तुम सप्रेम सहायता करो, अभी तुम सप्रेम सहायता करो। भाइयों और बहनों, मैं अंत में यह ही कहना चाहूँगी कि मनुष्य को जन्म देना बड़ी बात नहीं होती, पर मनुष्य बन जाना ही सबसे बड़ी बात होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनुष्का। हेलो। Good morning. Myself K. Anushka from Sagri Tara School. I am studying in class 7. Today I am going to present a poem. Poem title is A Blessing Poet Swami Vivekanand. The mother's heart, the hero's will, the softest flower, sweetest sweet, the charm and force that ever say, the altar fire flaming flame, the strength that lead in love obeys, for reaching dreams and passion ways, eternal faith in self in all, the light divine in great in small. All this more than I could see, today may mother grant to thee. Thank you. आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीना शुगर कक्षा 9वीं सागरतरा स्कूल से स्वामी विवेकानंद जी के लिए एक कविता प्रस्तुत करूंगी। भारत के इतिहास की गौरवशाली गाथा गाती हूँ। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए जीवनी सुनाती हूँ। भारत के इतिहास की गौरवशाली गाथा गाती हूँ। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी सुनाती हूँ। 12 जनवरी 1863 में जन्मा नरेंद्र कलकत्ता में। पिता विश्वनाथ, माता भुवनेश्वरी, बुलाते इन्हें नरेंद्र। ऊंचे कुल में जन्मा फिर भी छुआ नहीं अभिमान। लाल मिलाया भारत माँ को बनकर पुत्र महान। भोग विलास न भाया जिसको सेवा का व्रत धारा। सन्यासी योगी न बन जिसने जीवन पूर्ण गुजारा। भारत के उत्थान को लक्ष्य बनाया। घूम घूम कर देश विदेश में संस्कृति ध्वज फहराया। दीनहीन जन को लेकर हर समय पूजा माना। उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के नाम से सारे जग में जाना। सत्य ही शक्ति, सत्य ही कल्याण, सत्य ही शुचि है, सत्य ही परम ज्ञान। राजनीति से रहे दूर, सत्कर्म का करो आह्वान। गुरु रामकृष्ण से उन्होंने दीक्षा पाई। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग जैसी उनकी है रचनाएं है देन। 4 जुलाई 1902 में त्यागी अपनी देह। थैंक यू। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय मेघा।
evening. नमस्कार, मेरा नाम मेघा आदर्श है। मैं विवेकानंद केंद्र विद्यालय के कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है जागृत देवता। वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो तुम सबके घट में व्याप्त है, उसी की आराधना करो, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो एक साथ ही ऊंचे पर और नीचे भी है, पापी और महात्मा, ईश्वर और निकृष्ट कीट एक साथ ही है, उसी की पूजन करो। जो दृश्यमान है, ज्ञेय है, सत्य है, सर्वव्यापी है, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो अतीत जीवन से मुक्त, भविष्य के जन्म मरणों से परे है, और जिसमें हमारी स्थिति है और जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे, उसी की आराधना करो, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। ओ विमूढ़, जागृत देवता की उपेक्षा मत करो, उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही विश्व पूर्ण है। काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो, जो तुम्हें विग्रहों में डालती है। उस परम प्रभु की उपासना करो, जिसे सामने देख रहे हो, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जय हिंद। धन्यवाद। नंदिनी वर्मा। Good afternoon to one and all present here. Respected judges, teachers and all my brothers and sisters. I am Nandini Verma of class 8A, student of Vivekananda Kendra Vidyalaya. Today I am going to recite a poem named The Living God, which is written by Swami Vivekananda. He who is in you and outside you, who walk through all hands, who walk on all feet, whose body are all him worship, break all other idols. He who is at one, the high and low, the sinner and the saint, both God and woe. Him worship, break all other idols. He who is at one, the high and low, the sinner and the saint, both God and woe. Him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other idols. In whom we neither past life, nor future birth nor death, in whom we always have been, and always shall be one. Him worship, break all other idols. A fools who neglect the living God and his infinite reflection with which the world is full, while a run after imaginary shadows that lead alone to fight and quarrel, him worship, the only visible, break all other idols. At last, I would like to conclude my speech by saying a quote of Swami Vivekananda: mind is not a dustbin to keep anger, hatred and jealousy, but is a treasure box to keep love, happiness and sweet memory, said by Swami Vivekananda. Thank you. Tarangini. Namaskar. A very pleasant morning to all of you present over here. Myself P.L.S. Sangvi from class 8 Vivekananda Kendra Vidyalaya. I would like to deliver a poem, The Living God, by Swami Vivekananda, written to an American friend from Almora on 9 July 1897. The Living God, He who is in you and outside you, who walks through all hands, who walked on all feet, whose body are all ye, him worship and break all other idols. Ye fools who neglect the living God and his infinite reflection to the world is fool. He who is at the once the high and low, the sinner and the saint, both God and worm, him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other idols. While ye run after imaginary shadows that leads only to fights and quarrels,
from worship is visible, in whom is neither past life, nor future birth, nor death, in whom we always have been and shall be one. Thank you. Pankhaduri Singh. Pankhaduri Singh. यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं पंखुड़ी सिंह विवेकानंद केंद्र विद्यालय कक्षा 10वीं ब से आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कविता समाधि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सा व्योम में यह विश्व नजर आता है। मनो आकाश अस्फुट भासमान विश्व वहाँ, अहंकार स्रोत ही में तिरता डूब जाता है। धीरे धीरे छाया दल लय में समाया जब, धारा निज अहंकार मंद गति बहाता है। धारा बंद हुई वह, शून्य में मिला है शून्य, अवांग मत सगोचरम, वह जाने जो ज्ञाता है, वह जाने जो ज्ञाता है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं श्री आराज सिंह स्वामी विवेकानंद केंद्र विद्यालय की छात्रा आज आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद की रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही है और इस कविता का शीर्षक है जागृत देवता। वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो तुम सबके घट में व्याप्त है, उसी की आराधना करो और अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो एक साथ ही ऊंचे पर और नीचे भी है, पापी और महात्मा, ईश्वर और निकृष्ट की एक साथ ही है, उसी की पूजना करो। जो दृश्यमान है, ज्ञेय है, सत्य है, सर्वव्यापी है, अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। जो अतीत जीवन से मुक्त, भविष्य के जन्म मरणों से परे है और जिसमें हमारी स्थिति है, जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे, उसी की आराधना करो और अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। ओ विमूढ़, जागृत देवता की उपेक्षा मत करो, उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही विश्व पूर्ण है। काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो, जो तुम्हें विग्रह में डालता है, उस परम प्रभु की उपासना करो जिसे सामने देख रहे हो। अन्य सभी प्रतिमा को तोड़ दो। धन्यवाद। Namaskar to all. I am Sonakshi Chandra from class 8A studying in Vivekananda Kendra Vidyalaya, Port Blair. I am going to present a poem by Swami Vivekananda, a benediction. The mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwell on Aryan altars flaming free. All these be yours and many more, no ancient soul could dream before. Be thou to India's future son, the mistress, servant, friend in one. Thank you. एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं रिया सिंह कक्षा 9वीं की छात्रा राजकीय निदेशक बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। आज मैं आप सबके सामने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर
एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ, जिनकी काव्यत्री है सुष्मिता सिंह। तो कविता कुछ इस प्रकार है। कोलकाता में अवतरण हुआ जब नरेंद्र दत्त का, महक उठी उनके चरण रथ से हिंदुस्तान की पावन धरा। प्रकाश पुंज सा था वो, कभी आंधियों से न था डरा। ज्ञान की रोशनी से उनके अब तक रोशन है ये धरा। था कथन, कर लोगे जो करना चाहोगे, गांठ मन में बांध लो, जो करना है बस वही करो, तुम जो बात मन में ठान लो। होगा यकीन खुद पर तो पाओगे ईश्वर को भी सम्मुख खड़ा। उठो जागो तब तक न रुको, जब तक लक्ष्य न हो सम्मुख धरा। थे मानते शक्ति को जीवन, कमजोरी को मृत्यु समान। हारे तो बनोगे मार्गदर्शक, जीते तो संचालन पद है धरा। स्वामी जी के अनमोल विचारों को जिसने भी आत्मसात करा, ज्ञान से महका उसका जीवन और पावन होती रही ये धरा। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। इतनी तसल्ली से सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम जे जीविका है। मैं कक्षा 9वीं सा की हूँ। मैं राजकीय निदर्शन बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की हूँ। मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पुराने यादें। एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, वे नरेन से बना विवेकानंद जी। उनकी यादें करुणा थी, इनकी प्रतिभा, इनकी मेधा को सबने लोहा माना। इन्होंने इस दुनिया को बताया एक देश है भारत भी। अपनी माँ से लिपटे ऐसे जैसे बालक बरसों से बिछड़ा। इन्होंने इनकी पूजा और अर्चना थी बस भारत माता ही। भारत से लहराए हुए ध्वज को जिसने भी लहराए हो, भारत की ध्वज को जिसने भी लहराए हो, बस जिसके कारण मन में गहराया हो, वे थे हमारे विवेकानंद जी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। मैं राजकीय निदर्शन बहुउद्देशीय विद्यालय से आई हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद जी। जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिनमें भारत का जग में बढ़ाया मान। शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर जब उसने पुकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गुंजा जयकार था। जिससे दुनिया प्रभावित थे, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। शोषित वंचित पीड़ित के लिए जिसके मन में करुणा थी, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदली दुनिया की। जिसके चेहरे पर शांति और अर्घ्य में आनंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। धन्यवाद। Good afternoon to everyone present here, respected teachers, the Swamiji and my beloved friends. Today I am going to recite a poem which is titled as Thy Love I Fear, written by Swami Vivekananda. It is written from the perspective of Krishna about how love is incomparable to anything in this world. So here it goes. Thy knowledge, man, I not value. It is thy love that I fear. It is thy love that shatters that shakes my throne and gives God the human tears. For love, behold, the Lord of all, the formless ever free, is made to take the human form
to play and live with thee. What learning they of Bindra's groves, the herdsman ever got. What size girls that makes thee kind, they loved and me they bought. Thank you. With that, our today's program is over. Thanks to judges, thanks to everyone. Good day.